So we are starting with the revision of Foreign Exchange Management Act right from the basics. Starting from why has this act been introduced? तो आप लोग जानते हो फेमा के पहले फेरा हुआ करता था, बट फेरा के जो प्रोविजंस थे बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट थे, which was not helping our economy. So instead of controlling, Manmohan Singh thought, why not to regulate the foreign currency? And that was the purpose why we started to draft a new act, which is right now called as the Foreign Exchange Management Act. What is the purpose of this particular act? इस act का SOP क्या है? The scope, object and purpose. So basically this act has been introduced to consolidate and to amend the law relating to forex with the objective of two things. पहला ऑब्जेक्ट है, वी वांट टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. तो हमने काफी कुछ फ्रीडम दिया है ट्रेडिंग करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. आपने देखा है शेड्यूल 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 6 हमने अलाव भी किया है ट्रेडिंग करने के साथ साथ कि आप फॉरेन करेंसी में अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो. तो हमने ये चीजें आपको फैसिलिटेट की है, परमिशन दे दिया है, बोला है जी ले अपनी जिंदगी कर ले, जितना ट्रेडिंग करना है तू कर ले. अगर एक्सपोर्टर है एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्टर को भी हमको ऑब्वियसली अलाउ करना पड़ेगा टू इंपोर्ट गुड्स. अलोंग विद दैट वी आर आल्सो प्रमोटिंग orderly development and maintenance of forex market in India. आप लोग रीड करो तो ये दोनों भी बातें, why has this act been introduced? बताओ. पॉइंट नंबर 1, to facilitate external trade and payment, and second is promoting orderly development and maintenance of forex market in India. Along with that, you know, this complete act comprises of 7 chapters, out of which you only have the first 2 chapters, that too only up to section number 6. So there are only 6 sections जो आपके syllabus में covered है, but along with these 6 sections, you also have to do the rules as well as the regulations and the schedules that have been notified. Section 1 जैसे हर एक्ट का होता है, फेमा का भी सेक्शन 1 is short title, applicability and extent. The short title of this act is Foreign Exchange Management Act. Extent मतलब geographical extent. This act applies to whole of India. But India में ये किसको किसको applicable है? So in India it applies to whole of India, obviously to PRIs, but along with PRIs, it's also applicable to PROIs as and when it is specified. But what is more important is it also applies to those branches, offices and agencies which are outside India. Which are where? But it is owned and controlled by a PRI. तो कोई PRI है, उसकी कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी भले ही ज्योग्राफिकली इंडिया के बाहर सिचुएटेड है. पहले तो हमने कहा ना इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. अब ये ब्रांच, ये ऑफिस, ये एजेंसी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, बट फिर भी उस ब्रांच को, उस ऑफिस को, उस एजेंसी को हमारा फेमा एप्लीकेबल होगा अगर ये ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी इज ईदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ PRI. नेक्स्ट, सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस. सबसे पहली डेफिनेशन है ऑफ अ पर्सन. पर्सन में कौन कौन है? इट्स समवेयर सिमिलर टू द इनकम टैक्स एक्ट. पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, Hindu undivided family, a partnership firm, AOP, BOI, AJP, and it also includes any branch, office or agency owned or controlled by such a person. Next, PRI. This is a very important definition. PRI के 2 बच्चे हैं. एक तो क्या आप इंडिविजुअल हो और दूसरा आर यू एन आर्टिफिशियल पर्सन. जहां तक
इंडिविजुअल की बात है तो PRI जो है कब माना जाएगा आपको? When you have stayed in India for more than 182 days in the preceding financial year. कब माना जाएगा PRI हो? When you have stayed in India for more than in the immediately preceding financial year. But अब देखो, अगर कोई PRI है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो बिजनेस के लिए, या तो फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए. आरबीआई के नोटिफिकेशन के द्वारा और एक पॉइंट कवर हो जाता है और वो है एजुकेशन के लिए. तो कौन है? पीआरआई. बट ये पीआरआई इंडिया छोड़ के जा रहा है. क्यों जा रहा है? 4 कारण वापस से बताओ तो. एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अनसर्टेन पीरियड या एजुकेशन. तो जैसे वो इंडिया छोड़ के गया, ये 4 कारण के लिए ही विल बी कंसिडर्ड एज अ PROI. क्योंकि जो बंदा PRI नहीं है उसको हम कहेंगे एज अ PROI. इसका रिवर्स भी एप्लीकेबल होता है. कोई PROI है, कौन है? और ये PROI इंडिया में आया. इंडिया में क्यों आया है? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो बिजनेस के लिए, या तो अनसर्टेन पीरियड के लिए. तब वो PRI होगा. कौन होगा? बट अगर कोई PROI इंडिया में आया है फॉर अ रीजन अदर देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड अनसर्टेन पीरियड, मतलब उसका अदर देन अनसर्टेन पीरियड, मतलब उसका पीरियड सर्टेन है, तब उसको हम PROI मानेंगे. So that's the definition of PRI for an individual. But individual के साथ साथ PRI की definition है even for an artificial person. कब माना जाएगा कोई artificial person PRI है? कोई भी body corporate, मतलब artificial person, if it is registered or incorporated in India, then it's going to be considered as a PRI. In fact, कोई ब्रांच है, ऑफिस है या एजेंसी है जो किधर है? इंडिया में है. किधर है? बट इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PROI. किधर है? खत्म. इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ PRI. उसका रिवर्स भी सोचो. कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है, कोई एजेंसी है आउटसाइड इंडिया है, तो वो आउटसाइड इंडिया, बट इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ PRI. PRI ने उसको ओन किया है या तो कंट्रोल किया है, कहानी खत्म. इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन PRI. क्या माना जाएगा? PRI. इसलिए आपने देखा होगा सेक्शन 1 में जो एक्सटेंट है, इंडिया तो कवर हुआ है, बट इवन इफ योर ब्रांच, योर ऑफिस or your agency is situated outside India but owned or controlled by a PRI, उस ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी को भी FEMA एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. अरे हाँ या ना? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. सबसे पहली बात तो डेफिनेशन देखते हैं ऑफ अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय a capital account transaction? कोई भी ट्रांजैक्शन के द्वारा जिससे आपका अल्टर हो रहा है या तो एसेट या तो लाइबिलिटी, इंक्लूडिंग अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, एंड यू आर अ PRI, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. इसमें दूसरा पहलू भी है कि अगर आपकी एसेट या लाइबिलिटी अल्टर हो रही है इन इंडिया, आप कौन हो? PROI, तब ये ट्रांजैक्शन को माना जाएगा एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के साथ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन करना भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? पहले तो जनरल रूल बोला है,
any transaction which is not a capital account transaction will be considered as a current account transaction. बट फिर उसके नीचे कहा है, जैसे अगर लीगल भाषा में कहने जाए, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग, मतलब ऊपर जो हमने जनरल स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको हार्म ना पहुंचाते हुए हम और कुछ कहना चाहते हैं. वो और कुछ क्या है? दिए गए 4 ट्रांजैक्शन को माना जाएगा एज, कम ऑन गाइस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. कौन सी 4 चीजें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कैटेगराइज की गई है? पहली बात तो पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड्स. बोलो तो मेरे साथ, पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड्स. देन पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. क्या है पॉइंट 2? रिपीट. पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इनफैक्ट आपका अगर कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म मतलब कितने से कम? 6 मंथ से कम, या कुछ क्रेडिट फैसिलिटी ली है जिसका ड्यूरेशन 6 महीने से कम है, भले ही वो लोन है, फिर भी हमने उसको क्या कैटेगराइज किया है? एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ओनली इफ इट इज लेसर देन 6 मंथ्स. आपने लिविंग एक्सपेंसेस का रेमिटेंस दिया है आपके स्पाउस, पेरेंट्स या बच्चों का हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, या तो आपने एक्सपेंसेस किए स्पाउस, पेरेंट्स और बच्चों के फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, फॉर एजुकेशन और आपका मेडिकल का खर्चा. ये सारे खर्चे को माना गया है एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. ओके, अलोंग विथ दैट हमने बाकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी करी थी, जैसे कि फॉरेन करेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन करेंसी? एनी करेंसी अदर देन द इंडियन करेंसी इज नोन एज फॉरेन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी, कुछ अटेम्प्ट पहले इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क का सवाल ये दोनों डेफिनेशंस के ऊपर पूछा था. फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी and it will also include deposits, credit and balance payable in any foreign currency. In fact, it also includes drafts, traveler's check, letter of credit, bills of exchange drawn in Indian currency, payable in foreign currency. या तो फिर drawn in foreign currency, payable in Indian currency. इसको कहा जाता है एज फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट, फॉरेन सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. फॉरेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी विल इंक्लूड, कम ऑन गाइस, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. बट नाउ इट इज डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी, तभी वो सिक्योरिटी को माना जाएगा एज अ फॉरेन सिक्योरिटी. अगर आपकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये डिनोमिनेटेड है, किसमें डिनोमिनेटेड है? फॉरेन करेंसी में. किसमें डिनोमिनेटेड है? फॉरेन करेंसी में. तो माना जाएगा आपकी सिक्योरिटी कैसी है? फॉरेन सिक्योरिटी. बट डेफिनेशन उधर कंप्लीट नहीं हुई है. कहा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी. सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड है ना फॉरेन करेंसी में, कहानी एक्चुअली उधर ही खत्म हो जाती है. बट इसको अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि इसका जो रिटर्न है या इसका जो रिडेम्पशन है आपको मिल रहा है इंडियन करेंसी में. इसलिए हमने उसको स्पेसिफिकली डेफिनेशन में स्पेसिफाई किया है, क्योंकि किसी को लगेगा, डाउट तो आएगा ना कि रिडेम्पशन तो इंडियन करेंसी में है, रिटर्न तो आपको रुपीज में मिल रहा है, तो ये फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है, ये इंडियन सिक्योरिटी है. हम कहेंगे नो नो, आपने उसको डिनोमिनेट किस में किया है? फॉरेन करेंसी में. किस में डिनोमिनेट किया है? एंड बिकॉज इट्स डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी, it's going to be considered as a foreign security. It's going to be considered as what? Foreign security. कुछ समझा आपको मैंने क्या कहा है? पक्का बोलो मुझे. हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे जब सिखाया था आपको. What is important? Come on, tell me. कि आपकी सिक्योरिटी कौन से करेंसी में डिनोमिनेटेड है.
अगर वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, आपका आंसर होगा दैट सिक्योरिटी इज अ फॉरेन सिक्योरिटी. नेक्स्ट, सेक्शन 3 में 4 बातें बताई गई है. सेक्शन 3 इज एप्लीकेबल टू बोथ PRI एज वेल एज PROI. पहली बात तो, नो पर्सन PRI हो या PROI हो, फर्क नहीं पड़ता. नो पर्सन शल, 4 चीजें नहीं कर सकते आप. कोई भी हो आप, फर्क नहीं पड़ता है. PRI या PROI फर्क नहीं पड़ता. आप क्या 4 चीजें नहीं कर सकते? यू कैन नॉट डील इन फॉरेक्स और फॉरसे एक्सेप्ट यू आर एन ऑथराइज पर्सन. मतलब क्या? ऑथराइज पर्सन फॉरेक्स और फॉरसे में डील कर सकता है. सवाल ये उठ गया फिर, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑथराइज पर्सन? तो ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन कवर्ड होता है? 4 कैटेगरी के लोग ऑथराइज पर्सन में कवर्ड होते हैं. कौन से 4 लोग बताओ? ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट्स एंड अदर ऑथराइज पर्संस. ये 4 लोग कैटेगरी में आते हैं ऑथराइज पर्सन के. तो कल जाके अगर मुझे से लंदन जाना है घूमने के लिए और मुझे पाउंड्स लग रहे हैं, I can give rupees and get pounds, but from whom? Only from an authorized person. इन 4 में से कोई भी हो सकता है. उससे मैं रुपीस देके पाउंड्स एक्सेप्ट कर सकती हूं. नेक्स्ट, नो पर्सन शैल मेक पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ अ PROI. आप डायरेक्टली ना PROI को पेमेंट दे सकते हो, और अगला वाला पॉइंट है ना आप PROI से पेमेंट ले सकते हो. दिस इज ऑल फॉरेन करेंसी हैज टू बी रूटेड थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन ओनली. इसलिए लिखा है you cannot make payment to a PROI and you cannot receive payment from a PROI otherwise than through an authorized person. याद कीजिए, कोई फिरंगी गोवा में आया है, वो एक कैफे में बैठा है, चाय टोस्ट ले रहा है और पैसे दे रहा है इन डॉलर्स. क्या उस कैफे वाले को डॉलर्स एक्सेप्ट करने चाहिए? सेक्शन 3 रोकेगा. नो पर्सन शैल रिसीव पेमेंट फ्रॉम PROI. अच्छा ठीक है, ये कैफे नहीं है, सपोज ये ताज होटल है और उसकी रेस्टोरेंट की चेन है, और ताज होटल ने परमिशन ली है और ऑथोरिटी ली है और वो ऑथराइज पर्सन बना है. क्या डॉलर्स में एक्सेप्ट हो सकता है? यस. आप करो ये चीज, बट कब कर सकते हो? ओनली इफ यू आर एन ऑथराइज्ड पर्सन. एंड लास्ट, you cannot enter into financial transactions in India as consideration for acquisition of assets outside India. This particular point is talking about hawala transactions. हवाला ट्रांजैक्शंस क्या हो रहा है? एक्चुअली वो अपने गुल्लक को बाईपास कर रहा है. याद कीजिए, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, दुबई, गोल्ड का ज्वेलरी, याद है या नहीं? प्रेस्टीज पॉइंट, फर्स्ट फ्लोर, याद है या नहीं? ये हवाला ट्रांजैक्शन लीगली अलाउड नहीं है. अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब एनी ट्रांजैक्शन विच इज इन्वॉल्विंग payment to any person, receiving payment from any person, drawing or issuing bills of exchange or transferring securities. ठीक है, इसमें सिर्फ एक बात थी कि आपको PROI से पेमेंट मिल रहा है. Okay, so payment is received, and if it is received without inward remittance, okay, then it will be deemed that you have received the money other than an authorized person. जैसे कि अगर मुझे मेरी YouTube की इनकम मिल रही है गूगल से मुझे YouTube की इनकम मिल रही है और इनकम मेरी HDFC बैंक में आ रहा है, बैंक तो ऑथराइज्ड पर्सन है, बट फिर भी माना जाएगा इट्स अदर देन एन ऑथराइज्ड पर्सन अगर मैंने इनवर्ट रेमिटेंस का फॉर्म सबमिट नहीं किया. तो अगर मैं इनवर्ट रेमिटेंस का फॉर्म सबमिट कर लेती हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो माना जाएगा ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ही PROI ने PRI को पेमेंट दिया है. अरे आई क्या बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? नेक्स्ट, सेक्शन 4 तो एक सेंटेंस का सेक्शन है, एकदम इजी.
So except as provided in the act, okay, no PRI, no ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? PRI को या PROI को? PRI को ये सेक्शन एप्लीकेबल है. कोई भी PRI हा OTP नहीं कर सकता. हा OTP मतलब होल्ड, अक्वायर, ओन, ट्रांसफर, पोजेस. क्या होल्ड, ओन, पोजेस, ट्रांसफर किस चीज का नहीं कर सकता है? फॉरेक्स, फॉर से और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. आई क्या बात समझ में? यस. नेक्स्ट, दो ही सेक्शंस बस बचे हुए हैं, एक्ट खत्म हो गई रिवीजन के लिए. सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. दिस इज अ रिवीजन. रिवीजन मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द एक्ट. जो पहली बार फेमा को सुन रहा है उसको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है. मतलब ना ही करो तो बेहतर है. बट अगर आपने किया है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, शिद्दत से मुझे सुना है, तो ऐसे केस में यस, देन द रिवीजन इज गोइंग टू बी इंपैक्टफुल. पहली बार समझने में कुछ नहीं समझ में आएगा आपको. फेमा मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल एक्ट. एक एक छोटी छोटी चीज आप लोग जानते हो. PRI, PROI, कैपिटल, करंट, कितने अनगिनित हमने एग्जाम्पल्स दिए थे एक एक वर्ड को एनालाइज करने के लिए. So it's a very technical act. You cannot take it lightly. I've already told you the reasons. एक तो इसका वेटेज 10 से 12 नंबर है. कौन सी रिकॉर्डिंग? इसमें देखो क्या मैं? अच्छा, कैसे रे तुम बाबा, कसं व्हायचं? ओके, वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट्स ऑल्सो आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आ जाइए. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन देखो, सेक्शन 5 कहता है एनी पर्सन कैन ड्रॉ और सेल फॉरेक्स. ड्रॉ करना समझता है, सेल करना भी समझता है. फॉरेक्स टू और फ्रॉम एज द केस में बी एन ऑथराइज्ड पर्सन if such drawal or such sale is of a current account transaction. So basically current account transaction का अगर आप नेचर देखते हो, ये मैंने आपको बताया है, it is freely permitted unless restricted. कैपिटल अकाउंट का टोटल ऑपोजिट है. कॉन्सेप्ट परमिसिबल है, उसका शेड्यूल दिया है, उसके अलावा सब कुछ प्रोहिबिटेड है. इसमें क्या है? हमने कहा ये प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 1, बाकी सब कुछ फ्रीली परमिसिबल है. अरे हो कि नहीं? बोलो ना. ऑफ कोर्स कभी कभी आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, कभी कभी सीजी का अप्रूवल लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो. करना अलाउड है. वो भी एलआरएस स्कीम की वजह से तो $2.5 लाख तक तो आपको किसी का भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. आरबीआई के पास भी जाने की जरूरत नहीं है. देखोगे आगे शेड्यूल नंबर 3 में. बट पहले हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 1. शेड्यूल 1 वो ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा है. करंट अकाउंट जो क्या है? प्रोहिबिटेड मतलब फॉरबिडन. चाह कर भी आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो. शेड्यूल 2 में वो ट्रांजैक्शंस है जो करना अलाउड है, बट आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. शेड्यूल 3 में वो ट्रांजैक्शंस है जो करना अलाउड है, बट आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, नॉट सीजी, आरबीआई. ओके, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 1 ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. समझो आप बात को, सेल करने पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, क्योंकि सेल करने पे गुल्लक तो अपना भर रहा है. प्रोहिबिशन किसमें? ड्रॉल पे है. ड्रॉल. सो ड्रॉल के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस है जिनको हमने स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया है. 8 ट्रांजैक्शन जिसमें से एक डिविडेंड वाला पॉइंट कट हो गया, तो लर्न करने के हिसाब से आपको 7 पॉइंट्स है. 7 पॉइंट्स है जो प्रोहिबिटेड है. क्या है? प्रोहिबिटेड. कौन से पॉइंट्स प्रोहिबिटेड है? पहली बात तो रेमिटेंस आउट ऑफ व्हाट? लॉटरी विनिंग्स. रेमिटेंस आउट ऑफ. नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग और राइडिंग हॉर्सेस एंड अदर सच हॉबीज. नेक्स्ट, याद कीजिए किशन को, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स,
बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स और स्वीप स्टेक्स. पेमेंट फॉर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट made towards equity investment in joint venture or wholly owned subsidiaries abroad of Indian companies. डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट तो अब डिविडेंड बैलेंसिंग रिडंडेंट हो गया. पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर RSCR स्कीम, याद कीजिए रशिया इंडिया है ना. तो रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, क्या ये रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक्सपोर्ट करने के लिए आपने एजेंट अपॉइंट किया है, एजेंट का जो कमीशन है उसको देने के लिए हमने आपको प्रोहिबिट कर दिया है. हाँ, बट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो टी या टबैको, आप एजेंट को कमीशन दे सकते हो अप टू 10%. कॉल बैक सर्विसेज, वो चिंटी को याद कीजिए. ओके, एंड रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, हाँ भैया को याद कीजिए, तुषार भैया को. अच्छा सुनो, जितना उन्होंने एफडी क्रिएट किया था उसको रेमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके ऊपर जो उन्होंने इंटरेस्ट इनकम कमाई है, ओके, उसका रेमिटेंस अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है. क्या है? और इस स्कीम का नाम क्या है? नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट. वापस से बोलो तो, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट. 7 पॉइंट्स है, एक बार गो थ्रू कीजिए ये सातों भी पॉइंट्स. एक तो रेमिटेंस आउट ऑफ व्हाट, लॉटरी जैसा ही है, हॉर्स राइडिंग एंड रेसिंग वाले ट्रांजैक्शंस. फिर है आपको परचेस करनी है कोई लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स या स्वीप स्टेक्स. कमीशन ऑन एक्सपोर्ट and equity investment, joint venture, wholly owned subsidiaries abroad of Indian companies. फिर यहां पे भी एक्सपोर्ट हो रहा है, बट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट. कमीशन दे रहे हो, कमीशन देना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर टी, टबैको 10%. कॉल बैक सर्विस एंड इंटरेस्ट इनकम इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट. ये सब कुछ क्या है? प्रोहिबिटेड. करंट अकाउंट का शेड्यूल 1. अब जाते हैं करंट अकाउंट का शेड्यूल नंबर 2. ये ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहला वाला पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कल्चरल टूर्स. क्या है ये? कल्चरल टूर्स. कल्चरल टूर्स के लिए यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बट राइट नाउ नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. कल्चरल टूर्स याद रखना, प्रोहिबिशन में नहीं है. शेड्यूल 2 परमिटेड आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया. बट ये एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट का PSU, और वो भी कितने अमाउंट से ज्यादा? $10,000 से ज्यादा. तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा. किसका परमिशन लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट या उसका PSU फॉरेन प्रिंट मीडिया में पैसा डाल रहा है फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म, फॉर प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉर इंटरनेशनल बिडिंग, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. थर्ड वाला पॉइंट कह रहा है रेमिटेंस ऑफ फ्रेट, बिकॉज यू हैव चार्टर्ड अ वेसल. हु आर यू? अ पब्लिक सेक्टर यूनिट. आपको परमिशन लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट. किसका? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बाय ईदर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ PSU. इंपोर्ट किया है माल ऑन CIF बेसिस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस. तो इसके लिए भी आपको कौन सी मिनिस्ट्री का परमिशन लेना है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट. मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, उसके लिए आपने एजेंट को कुछ रेमिटेंस दिया है, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का परमिशन लेना पड़ेगा. आपने ट्रांसपॉन्डर हायर किया है, ओके, या तो टीवी चैनल हो आप
या तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टीवी चैनल वाले को कौन सी मिनिस्ट्री का परमिशन लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आपका कंटेनर डिटेन हो गया है और आपको डिटेंशन चार्जेस देने इन एक्सीडिंग in excess of the amount that has been prescribed by the director general, तब भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। ये 7th पॉइंट 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंस ऑफ प्राइस मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी by a person other than an international, national or state level sports body, and this prize money या sponsorship का amount is exceeding $1 lakh। उधर 10,000 था फॉरेन प्रिंट मीडिया, और ये है $1 लाख। कौन $1 लाख खर्चा कर रहा है? हम। किस पे? या तो प्राइस मनी पे या तो स्पॉन्सरशिप पे फॉर अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। याद कीजिए, बाइजूस कतार फुटबॉल मैचेस 320 crore Indian rupees, which is much more than $100K। कर सकता है बाइजूस, but only after taking the permission of the Ministry of HR Development, okay, Department of Youth Affairs and Sports। but यही खर्चा अगर BCCI कर रहा है तो फिर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई स्पोर्ट्स बॉडी है जो ऑपरेट करता है या तो स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, और वो अगर कुछ प्राइस मनी या स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो उनको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और P&I क्लब की मेंबरशिप फीस भी आप दे सकते हो आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये है शेड्यूल नंबर 2। ये क्या है? शेड्यूल 2 बहुत टेक्निकल है बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट्स। नहीं समझ में आया? परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जय माता दी। नेक्स्ट शेड्यूल 3, यहां पे आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स बट ओनली आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द लिमिट? बताओ लिमिट कितनी है LRS स्कीम में? $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर। तो $2.5 लाख तक की आपको परमिशन लेने की जरूरत है। $2.5 लाख तक क्या आपको परमिशन लेने की जरूरत है? आपको परमिशन लेना पड़ेगा ओनली आफ्टर 2.5 लाख लिमिट क्रॉस हो चुका है। किसके किसके लिए आप ये पैसा ड्रॉ कर सकते हो? ट्रांजैक्शंस जो कवर्ड है, 1 योर प्राइवेट विजिट टू अ कंट्री विच इज आउटसाइड इंडिया। कुछ गिफ्ट दे रहे हो, डोनेशन है। अच्छा, गिफ्ट डोनेशन के लिए कुछ अमाउंट है क्या? $10,000, $1 लाख, $5,000? नहीं, जितना देना चाहते हो $2.5 लाख तक का आप दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस के लिए खर्चा देना है, ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मेडिकल चेकअप अब्रॉड, और यू आर अकंपनिंग अ पेशेंट। कुछ तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रहे हो, स्टडीज के लिए बाहर जा रहे हो, और एनी अदर ट्रांजैक्शन विच इज अ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप जा सकते हो। और $2.5 लाख के लिए आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट $2.5 लाख की हमने लिमिट हटा दी है 3 केसेस के लिए। अगर आपको पैसा लग रहा है फॉर, बताओ, इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड और फॉर योर स्टडीज अब्रॉड, आपको कोई $2.5 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आप जितना पैसा ड्रॉ करना चाहते हो आप कर लो, बट यू विल हैव टू सबमिट ईदर द सर्टिफिकेट फ्रॉम कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, या मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, या तो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट। तो आप विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI $2.5 लाख से ज्यादा पैसा ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, मैं ट्रैवलिंग के लिए $3 लाख ड्रॉ करना चाहती हूं, मैं कर सकती हूं, बट आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। नो नहीं है। करंट अकाउंट के लिए प्रोहिबिशन के अलावा आप जितना पैसा ड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हो।
बट फिर वो सीजी का अप्रूवल या तो फिर आरबीआई का अप्रूवल. ओके, ये तो बहुत इजी था, इसमें कोई टेंशन नहीं है. बट इसमें फिर ये सारी बातें है ना, ये तो इंडिविजुअल का हो गया, अदर देन इंडिविजुअल भी आया है इसमें. बट उसके पहले अगर आप पीआर आए हो बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, यू आर अ पीआर आए बट यू आर नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, मतलब आप इंडिया में आए तो फॉर अ जॉब बट फॉर अ पीरियड विच इज लेसर देन 3 years. अब एक तो आप इंडियन सिटीजन हो and you have come to India on deputation to a branch office or agency of a foreign company. या तो आप इंडिया में आए हो और आप कौन हो, फॉरेन सिटीजन. एयर इंडिया के कैम्पबेल विल्सन को याद कीजिए. तो आप इंडिया में आए हो फॉर अ जॉब एंड यू आर अ फॉरेन सिटीजन. आप कितना रेमिट कर सकते हो, आप रेमिट कर सकते हो अप टू योर नेट सैलरी, नेट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोविडेंट फंड. यस और नो गाइस? यस. नेक्स्ट, if you are other than an individual, हम क्या कर रहे हैं, शेड्यूल 3 ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अदर देन इंडिविजुअल. क्या आपको डोनेशन देना अलाउड है? डोनेशन 3 चीजों के लिए, कौन सी 3 चीजों के लिए डोनेशन देना अलाउड है? क्रिएशन ऑफ शेयर्स इन अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, contribution to fund of such reputed educational institutions, contribution in the field of such donor company. हाँ या ना? नेक्स्ट, बट कितना पैसा आप दे सकते हो? एक में ही लोअर है, बाकी दोनों में हायर है. लोअर ऑफ 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग इन लास्ट 3 years. ये एवरेज है या टोटल 3 years का अर्निंग है? टोटल है. और $5 million, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज. नेक्स्ट, आनंद सर को याद कीजिए, उन्होंने एक एजेंट को अपॉइंट किया है अपने फार्म हाउस को बेचने के लिए टू अ फिरंगी. एजेंट मांग रहा है कमीशन. क्या आनंद सर कमीशन दे सकते हैं? बट कमीशन देना उनको अलाउड है हायर ऑफ $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस. दिस इज हायर ऑफ बोथ द 2 figures. नेक्स्ट, कंसल्टेंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंसल्टेंसी, 2 चीजों का कंसल्टेंसी है. एक है कंसल्टेंसी के लिए आप पैसा दे रहे हो ऑफ कोर्स फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और दूसरा है अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको कंसल्टेंसी का पैसा देना है, आप दे सकते हो कंसल्टेंसी के लिए $10 million पर प्रोजेक्ट. और अदर देन कंसल्टेंसी है तो कंसल्टेंसी के कितने चार्जेस आप दे सकते हो? $1 million पर प्रोजेक्ट. हमने कोई फिरंगी को अपॉइंट किया है एसपीसी में हमारा सेल्स बढ़ाने के लिए, और उसको हम कंसल्टिंग चार्जेस दे रहे हैं, क्या हम उसको दे सकते हैं? अप टू हाउ मच? $1 million. बट अगर वही प्रोजेक्ट एयरपोर्ट बनाना है, $10 million. इन फिगर्स को याद रखना, 10 millions and $1 million. नेक्स्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रेमिटेंस देना है. प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस मतलब आपको पता है, ठीक है, क्या आप रेमिटेंस दे सकते हो, बट इसका भी लिमिट हायर ऑफ 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट इन और $1 lakh, विच एवर इज हायर. यस और नो गाइस? इनके फिगर्स क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्या है ना, ये फेमा है ना, फेमा यहां पे अपन लाख, 10 lakhs, 100 lakhs को करोड़ बोलते हैं, वहां पे इट इज मिलियन एंड देन बिलियन, एंड 1 million इज 10 lakhs. नहीं आ रही बात समझ में? तो वो आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक जीरो भी इधर उधर बैंड बजा सकता है. नहीं आई बात समझ में? 10 लाख इज 1 million, समझ रहे हो आप? और ये 10 million है, मतलब 1 करोड़. समझ रहे हो क्या आप? हाँ, इसमें ये एक्सेप्शन आ गया कि शेड्यूल 2 और 3 सीजी और आरबीआई का आपका कोई अप्रूवल नहीं लगेगा अगर आप रेमिट करना चाहते हो फ्रॉम अ रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट. ओके, या तो EEFC, एक्सचेंज
अर्नर, फॉरेंसी करंट, फॉरेंसी एक्सचेंज अर्नर, फॉरेन करेंसी अकाउंट से रेमिटेंस अगर करना चाहते हो तो आपको सीजी या आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स: P&I क्लब की मेंबरशिप, शेड्यूल 2, सीजी, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लेना पड़ेगा, यहां पे आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आनंद सर जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, फिरंगी को, एजेंट के कमीशन को, आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए भी आपको आरबीआई का परमिशन लगेगा। बट सारी चीजों का देयर इज अ सुपर एक्सेप्शन। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है और आप अब्रॉड जाना चाहते हो विदाउट एनी लिमिट, विदाउट आरबीआई का अप्रूवल, आप आईसीसी कार्ड में जितना आपको परमिशन दिया है उतना खर्चा आप कर सकते हो। ओके, एंड एनी ट्रांजैक्शन which is a current account transaction which is not listed anywhere is freely permitted. ये सब कुछ था current account transaction. So now the question arises, what about capital account transactions? तो अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो अल्टर करता है एसेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पीआरआई और एसेट लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पीआरओआई। तो कैपिटल क्या है, करंट क्या है, आप ऑलरेडी जानते हो। अब सबसे पहली बात तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पीआरआई अगर चाहे ही कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेक्स, फॉरसे और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ओनली इफ he has acquired or held it when he was a PROI or he has inherited it from a PROI. याद है आपको तुषार भैया वाला एग्जाम्पल? उन्होंने घर तब खरीदा था जब वो क्या थे, PROI, या तो किसी ने PROI की डेथ के बाद उसके बेटे ने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है जो आउटसाइड इंडिया है। क्या ये चीज अलाउड है? और इसी का मिरर इमेज पीआरओआई के लिए कहता है कि पीआरओआई अगर चाहे वो होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है इन इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया ओनली इफ ही हैज अक्वायर्ड इट व्हेन ही वाज अ पीआरआई और ही हैज इनहेरिटेड इट फ्रॉम अ पीआरआई। आरबीआई ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं जिसमें उन्होंने 2-4 बातें लिखी है। पहली बात तो आप फॉरेन करेंसी का अकाउंट ओपन कर सकते हो इफ यू आर अ पीआरआई बट दिस फॉरेन करेंसी वाज अक्वायर्ड बाय यू व्हेन यू वर अ पीआरओआई। नेक्स्ट, कोई भी इनकम आपको मिली है either from business or from employment or as a way of investment or by way of a gift or inheritance, जब आप PROI थे, आज आप PRI हो, you are allowed to hold it. Next, forex held outside India acquired when you are a PROI. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, कि आप PRI फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हो उन एसेट्स को जो एलिजिबल एसेट्स है अब्रॉड या उन एसेट से आपको आई है इनकम। आज आप कौन बन गए हो, पीआरआई, बट आप पेमेंट किस चीज के लिए कर रहे हो, फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आपको आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है, बट याद रखना ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कॉस्ट इज टोटली मेट आउट ऑफ द इनकम फ्रॉम एलिजिबल एसेट्स. So it's either income from eligible assets or from the eligible asset itself. एक बंगलो बेच दिया जो तब खरीदा था जब आप PROI थे, और बंगलो बेचने के बाद 2 फ्लैट खरीदे। ये दोनों फ्लैट की कीमत अगर बंगले को बेचने के बाद जो पैसा आया है उसी से आपने मीट किया है तो आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आई क्या बात समझ में? अरे बोलो ना। अब जब मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात करती हूं, कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है, कुछ ट्रांजैक्शंस को आप रिस्ट्रिक्ट
नहीं कर सकते, और कुछ ट्रांजैक्शंस है जो शेड्यूल 1 और 2 में दिए गए जो परमिसिबल है बाय पीआरआई और पीआरओआई। जैसे कि पहला पॉइंट कहता है अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। ये रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट है। दो ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट चाहकर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। कब? जब आप पैसे क्यों ड्रॉ कर रहे हो? फॉर द पेमेंट, फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन और अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन, या तो देर वॉज अ डेप्रिसिएशन इन योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन दो ट्रांजैक्शन के लिए ना सीजी ना आरबीआई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है। कौन से ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है? क्राफ्ट एन, याद कीजिए। पीआरओआई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता है इंडिया में। इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी, फर्म, प्रोप्राइटरीशिप, एओपी, व्हाटएवर, ओके। If that firm, company, or whatever proprietor is engaged in the business of chit funds, nidhi company, agricultural or plantation activities, real estate business, construction of farmhouse, and trading in transferable development rights, सिर्फ रियल एस्टेट के बिजनेस शैल नॉट इंक्लूड 1 2 3। मतलब ये 1 2 3 वाले ट्रांजैक्शन के लिए पीआरआई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कौन सी तीन चीजें? डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रेमाइसेस एंड इन्वेस्टमेंट इन रजिस्टर्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये पीआरओआई कर सकता है। ये पीआरओआई और एक क्लैरिफिकेशन दिया है, पीआरओआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता चिट फंड्स में, बट वो सब्सक्राइब मेंबर बन सकता है चिट फंड में। नॉर्थ कोरिया के तो सिटीजन और रेसिडेंट के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन एंटर नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट, आर द टू शेड्यूल्स परमिसिबल फॉर पीआरआई एंड पीआरओआई। कौन से ट्रांजैक्शंस है जो पीआरआई के लिए परमिसिबल है? इन्वेस्टमेंट बाय पीआरआई इन फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, या तो लोन लिया है फ्रॉम अ पीआरओआई, यू आर ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, गारंटी दी है पीआरआई ने इन फेवर ऑफ अ पीआरओआई, अलॉन्ग विद दैट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हो और आप फॉरेन करेंसी या नोट्स को होल्ड कर रहे हो, आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन किया है, ओके, इन फॉरेन करेंसी इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंश्योरेंस पॉलिसी आउटसाइड इंडिया आपने ली है। फिर उसके साथ साथ लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय पीआरआई टू पीआरओआई, remittance outside India of capital assets that you have sold and you have taken derivative contracts. और शेड्यूल 2 ये कहता है permissible transactions for PROI. These are what? Permissible transactions for PROI. कौन से ट्रांजैक्शन पीआरओआई के लिए परमिसिबल है? इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय पीआरओआई इन सिक्योरिटीज और कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्म, एओपी और सोल प्रोप्राइटरशिप। पीआरओआई इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। गारंटी पीआरओआई ने दी है ऑन बिहाफ ऑफ पीआरआई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो करेंसी होल्ड कर सकता है। डिपॉजिट्स बिटवीन पीआरआई एंड पीआरओआई, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन इन इंडिया बाय अ पीआरओआई, रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ अ कैपिटल एसेट इन इंडिया बाय अ पीआरओआई, एंड पीआरओआई ने कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन एंटर किया है। इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो कहता है शेड्यूल 1 परमिसिबल फॉर पीआरआई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन प्लस शेड्यूल 3 ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दोनों का मिलाके एलआरएस स्कीम में 2.5 लाख
डॉलर्स हमने अलाव किया है। ऐसे करके अपना रिविजन जो है फेमा का हो जाता है कंप्लीट।